In this class, we'll study about 5 kingdom classification system. So in our previous class, we had studied about 2 kingdom classification system, likewise 3, 4, 5, 6 and 7 kingdom classification system given by different scientists. So out of these all the classification systems, the first and the most important classification system that we have to study in detail according to our NCERT and also according to our NEET syllabus is the 5 kingdom classification system. So ये classification system हमें detail में पढ़ना है and this classification system was given by R.H. Whittaker और his full name was Robert Harding Whittaker. So he was from America and he classified living organisms into these 5 categories that we have studying here, that is the Plantae, Animalia, Fungi, Protista and Monera. So these are the 5 types of organisms that he classified living organisms into. So these 5 categories do not include every living organism. For example, lichens are not included in this 5 kingdom. So there are a few exceptions to this 5 kingdoms, that is there are a few certain living organisms which do not fall under any of these categories. And also, as we know that viruses are neither living nor non-living and they are intermediate of these two. So viruses are also not placed into these 5 kingdoms. Viruses don't come into any of these categories. So with a few exceptions, R.H. Whittaker has included almost every living organism. So we are going to study his 5 kingdom classification system. So इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया का यूज किया. फॉर एग्जाम्पल, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्ल वोज हो गए या फिर लिनियस हो गए या फिर कोई भी और साइंटिस्ट जैसे कि कोपलैंड थे जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, तो उन्होंने सर्टेन फीचर्स का यूज किया था ऑर्गेनिजम्स का, जैसे कि उनका सेलुलर स्ट्रक्चर यूज किया, वो प्रोकैरियोटिक हैं या वो यूकैरियोटिक हैं, वो ऑटोट्रोफिक हैं या वो हेटेरोट्रोफिक हैं, वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है. तो ऐसी डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज किया था डिफरेंट साइंटिस्ट ने और उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था. लाइकवाइज R.H. Whittaker ने भी उन्हीं क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का यूज किया और उसी के बेसिस पर इन्होंने ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था और उसमें ये 5 किंगडम इन्होंने फॉर्म किए. So we are going to study the criteria or the basis of determination of these 5 kingdoms as given by R.H. Whittaker. So the first and the foremost criteria that R.H. Whittaker used to classify the living organisms, that was the cellular structure. So cellular structure could include the nuclear membrane, the presence or absence of the nuclear membrane, likewise the cell wall, and likewise there could be any other cellular features which could be included in cellular structure. So first of all, we are going to study the cell type, that is these 5 organisms have cells of which category or which type of cell that these contain. So the first category, that is Monera. So we are going to study that Monera includes Archaebacteria, Eubacteria, Actinomycetes, Mycoplasma, and also there are few other examples. So all of these examples come under Monera. So if we study the cell type of Monera, we come to the conclusion that it is prokaryotic. So this word is made up of 2 combinations, that is prokaryotic. It shows that it has a primitive nucleus, it has a undeveloped or not very well structured nucleus. तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. सो यू कैन से ये प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है. And eukaryotic means presence of nuclear membrane. So you can see in these 4 categories, when the cells are eukaryotic, the nuclear membrane is present in these 4 cases. So this was the first criteria that was used by R.H. Whittaker to classify living organism. Now there is one more feature regarding to this cell type. We normally observe that prokaryotic organisms do not have membrane bound cell organelles. You must have studied about mitochondria or plastids, vacuoles, endoplasmic reticulum, Golgi bodies and other cell organelles which are either single membrane bound or which are double membrane bound.
So these membranes or these membrane bound organelles are not present in monera or prokaryotic cells. So all these cells which are prokaryotic, these will not have membrane bound cell organelles like mitochondria, plastid or vacuole. But all these eukaryotic organisms do possess membrane bound cell organelles, be it mitochondria or be it a vacuole or any other such cell organelle, they will possess membrane bound. So there could be two types, यानी कि one membrane और दो membrane, ये दोनों टाइप के membrane bound organelles हो सकते हैं. तो वो हमें different types के जो membrane bound cell organelles होते हैं वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जिसमें हमें सेल के बारे में पढ़ना है. So we are going to study those things in detail, but here we are getting just a brief reference of that. So every eukaryotic cell contains membrane bound cell organelles and also membrane bound nucleus, that is the nuclear membrane would be present over there. Now we come to the second type, that is second criteria, that is the cell wall structure or presence or absence of cell wall. So in bacteria there is cell wall. Likewise here also we have the presence of cell walls, but in the case of animals we don't find cell walls. Animals do not possess cell walls. So this is the first criteria, that whether cell wall is absent or present. So first, if we see the absence or presence, then the first four categories normally possess cell walls, but this does not possess, or cell wall is absent in the case of Animalia. Now we come to the structure of the cell wall, whether what is the substance which is making the cell wall or the composition of the cell wall. So on the basis of composition we divide the cell wall into cellulosic or pectocellulosic or chitinous or other such as peptidoglycan. So we are going to see different peptidoglycans, murine, muramic acid, these will come under the bacterial cell wall. So first of all, if we see the non-cellulosic cell wall, it does not contain cellulose like the plant cell wall. So this is the difference in the composition of the cell wall among first four. In the last we don't have cell wall, so we don't have to study about the composition. But in the first four we have to study about the composition of the cell wall. So at first, if you see the non-cellulosic cell wall of a bacteria, it contains polysaccharides. So you must have studied that cellulose is also a polysaccharide. But here the polysaccharide is different. Polysaccharide is a category which includes amylose or amylopectin or cellulose or glycogen or starch. All these things are polysaccharides. But here some other polysaccharide will be present, which we will study later, which are called as peptidoglycans, or different sorts of cell walls are present over here. So this first is polysaccharide, but which is non-cellulosic, यानी कि यहाँ polysaccharide का cell wall होगा लेकिन वो सेल्यूलोज का नहीं बना होगा. उसके साथ साथ उसमें अमीनो एसिड्स का भी कुछ रेसिड्यूज होता है, यानी कि अमीनो एसिड्स का भी सेल वॉल में प्रेजेंस यहाँ पर होगा. And then we come to the Protista. So Protista is a very complex kingdom. Protista में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. तो प्रोटिस्टा के साथ इशू ये है कि डिफरेंट बायोलॉजिस्ट प्रोटिस्टा में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं. तो ये प्रोटिस्टा जो है ना, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस है रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं सेल वॉल और कुछ में नहीं पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल डाई एटम्स में पाए जाएंगे, क्राइजोफाइट्स में पाए जाएंगे जो कि इन्हीं के कैटेगरीज हैं, लेकिन प्रोटोजोन्स में जनरली नहीं पाए जाते हैं. तो यहाँ पर कुछ में सेल वॉल होगा, यानी कि सेल वॉल वाला जो कॉम्पोजिशन होगा जो कि डिफरेंट कॉम्पोजिशन का हो सकता है वो होगा, लेकिन यहाँ पर सेल्यूलोज वाला सेल वॉल नहीं होगा. लेकिन सेल्यूलोज है एंड दैट इज फॉर्म्ड ऑफ किटिनस. सो fungal cell wall, for fungal cell wall contains chitin, that is why it is said that it is chitinous. And then we come to the plant cell wall. So plant cell wall you must have studied in your younger classes, and that is that plant cell wall contains cellulose. And in your 9th class you must have studied about different types of membrane
like freely permeable, semi-permeable or selectively permeable. So you must have studied that cell wall of plants is a freely permeable membrane. There you must have studied that cell wall is made up of cellulose in the case of plants. So you just have a background of that cellulosic information over here. And then Animalia does not contain cell wall, so no ifs and buts over there. Now we come to the third category, that is we have already studied along with the eukaryotic and prokaryotic. That is यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगा नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के इन चारों कैटेगरीज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं. So now we have completed 3 criteria. Now we come to the body organization. So this is a very important feature. अब कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म 2 सेल के, कुछ ऑर्गेनिज्म कुछ सेल के, कुछ ऑर्गेनिजम्स में हजारों लाखों करोड़ों सेल पाए जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सेल्यूलर और टिश्यू के पहले डिफरेंशिएशन कर लें, तो यहाँ पर जो बॉडी है वो एक ही सेल का बना है. एक ही सेल है तो उससे तो टिश्यू बन नहीं सकते हैं, क्योंकि टिश्यू में बहुत सारे सेल्स होते हैं. तो यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. दोनों जनरली सिंगल सेल्ड ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉलोनियल फॉर्म्स भी होते हैं और फिलामेंटस फॉर्म्स भी होते हैं. यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया फिलामेंट की तरह रहते हैं और कुछ बैक्टीरिया कॉलोनीज में रहते हैं, लेकिन नॉर्मली दीज आर यूनिसेल्युलर. तो अगर एक सेल के बने हैं तो वहाँ टिश्यू तो बन ही नहीं सकता, दैट इज ऑब्वियस. तो पहली 2 कैटेगरीज यानी कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. अब अगर बहुत सारे सेल हैं, कुछ 100 या a few hundred और a few thousand or few lakhs of cells are there, तो वहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रहती है कि बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं. यानी कि सेल्स में ऐसा एग्रीगेशन होगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जिससे कि सेल्स मिलकर टिश्यू को फॉर्म कर सके. तो हमें मल्टी सेल्युलर कैटेगरी मिलता है सबसे पहले फंजाई के केस में, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि टिश्यूज बनेंगे. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मल्टी सेल्युलर के केस में ये पहला कैटेगरी किंगडम आता है जिसमें हमें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टी सेल्स तो हैं, लेकिन नॉर्मली हम टोटली टिश्यू टाइप का क्लासिफिकेशन या टिश्यू टाइप का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है. और कहीं कहीं पर होते भी हैं तो वो लूजली टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर नॉट एग्जैक्टली टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स. सो यहाँ पर मल्टी सेल्युलर प्रेजेंस तो है, बट ऑल दोज सेल्स आर नॉट नेसेसरली फॉर्मिंग अ टिश्यू. There could be tissues, there cannot be tissue. So we cannot say that all of the fungal members contains tissue. Now we come to the 4th category, and that is the plantae. So this is the 4th kingdom that we have to study. And plantae में cells बहुत अच्छे से tissue के रूप में organized हो जाते हैं. You must have studied a few tissues in your younger classes in standard 9th. Remember those tissues called xylem or phloem, collenchyma, parenchyma, sclerenchyma. So meristematic tissue, permanent tissue. You must have studied about these tissues in your 9th class in your tissue chapter. So these tissues are not just not aggregations of a few cells. यहाँ पर सेल्स बहुत अच्छे तरीके से एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर शो करते हैं, जहाँ पर एक टिश्यू के अंदर एक सिमिलर ओरिजिन और फंक्शन के सेल्स पाए जाते हैं. सो दिस इज व्हाट मेक्स अ टिश्यू. तो टिश्यू में बहुत अच्छी तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं. अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू के ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो यहाँ पर प्लांट्स के केस में बहुत सारे टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीव्स बना सकते हैं ये, या रूट्स बना सकते हैं, या रूट का कोई स्ट्रक्चर बना सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जनरली ऑर्गन सिस्टम्स उतने अच्छे से डेवलप्ड नहीं होते. तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ टिश्यू तो बनते ही हैं, साथ साथ ऑर्गन्स तो बनते ही हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर देते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स. यानी कि आप अपने बॉडी को इमेजिन कर लो, हमारे बॉडी में
डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स या ये सारे ऑर्गन्स मिलके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। इनके अलावा और भी ऑर्गन्स है जैसे कि ग्लैंड्स, जैसे कि पैनक्रियाज, लिवर। तो ये सारी चीजें मिलकर यानी कि ऑल दीज ऑर्गन्स आर टुगेदर फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम। वी कैन नॉट ऑल्सो टेक द एग्जांपल ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। So here we know that our circulatory system is composed of heart, arteries, vessels and capillaries. So all these structures are together forming our circulatory system. Likewise, if we talk about our respiratory system or breathing system. So if we talk about our breathing system, we know that it is formed of nose, nasopharynx, then the pharynx, then the other lower part, that is larynx, then the trachea, bronchi, bronchioles and terminal bronchioles, and ultimately at last alveoli and also lungs. So these structures are together forming the breathing system. यानी कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो यहां पर सिर्फ ऑर्गन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले दो कैटेगरी में सेलुलर लेवल, तीसरे में थोड़ा बहुत टिश्यू वाला, लेकिन यहां पर टिश्यू अच्छे से बन गया, ऑर्गन भी बन गया और एनिमल्स के केस में ऑर्गन सिस्टम भी बन गया। सो दिस वाज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज classified, and this was a criteria used by R.H. Whittaker for classification into these 5 kingdoms. Now we come to the mode of nutrition. तो nutrition is the obtaining of nourishment from the environment. So यहाँ पर nourishment सिर्फ environment से हमें normally ऐसा लगता है कि हम obtain कर सकते हैं, but that is the concept of plants. तो यहाँ पे ऑब्टेनिंग ऑफ न्यूट्रिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना सकता है रॉ मटेरियल को यूज करके, या फिर किसी और से खाना ले सकता है विद इन द रेडीमेड फॉर्म। यानी कि इफ एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म और एनीवे इट ऑब्टेन्स अ रेडीमेड फूड फ्रॉम अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, सो उसे हम कहते हैं हेटेरोट्रोफिक। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, those organisms are termed as heterotrophic, and those organisms which can prepare their own food through different methods or different types of photosynthesis or different types of chemosynthesis, those organisms are termed as autotrophic. So अगर हम बैक्टीरिया के केस में बात करें तो बैक्टीरिया के केस में हमें दो टाइप का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, पहला है ऑटोट्रोफिक और दूसरा है हेटेरोट्रोफिक। सो हेटेरोट्रोफिक इज वेरी सिंपल, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, एंड दिस इज द ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस या कीमो ऑटोट्रोफिक उसे हम कहते हैं, और जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसे हम फोटो ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में ये दोनों टाइप के पाए जाएंगे, यानी कि मोनेरा की कैटेगरी में कीमो ऑटोट्रोफिक यानी कि केमिकल्स की वजह से ये होगा, और जो दूसरा है दैट इज फोटो ऑटोट्रोफिक। तो बैक्टीरिया के ऑटोट्रोफिक में ये दोनों कैटेगरीज है, कीमो ऑटोट्रोफिक और फोटो ऑटोट्रोफिक। नाउ व्हेन वी कम टू हियर वी आल्सो फाइंड द सेम थिंग, दैट इज ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक। तो यहाँ पर मोनेरा के कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि डायटम्स हो गए या क्राइजोफाइट्स हो गए या फिर यूग्लेना हो गए, तो यूग्लेनॉइड्स हो गए। तो ये तीनों कैटेगरी अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन कुछ कैटेगरीज यहाँ पर हेटेरोट्रोफिक भी हैं जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो प्रोटिस्टा में हमें और 5 कैटेगरीज देखने हैं, दोज आर स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन जो कि प्रोटिस्टा में आते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें रखा जाएगा हेटेरोट्रोफिक। लेकिन डायटम्स, यूग्लेनॉइड्स एंड आल्सो क्राइजोफाइट्स, ये तीनों प्रोटिस्टा के वो कैटेगरीज होते हैं जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हेटेरोट्रोफिक ही पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर नो फंजाई कैन मेक इट्स ओन फूड। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, विच वी विल सी लेटर। यहाँ पर सैप्रोफाइटिक होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं,
होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, तो बहुत सारा टाइप्स का हेटेरोट्रोफिक होता है। तो फंजाई नॉर्मली दीज आर आइदर पैरासाइट्स, यानी कि फंजाई पैरासाइट की तरह होते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको डैमेज करते हैं। अदरवाइज फंजाई आर सैप्रोफाइट्स, यानी कि ये मरे हुए चीजों से उस पर उसको डिकम्पोज करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो हेटेरोट्रोफिक में दो टाइप हैं फंजाई में, और हेटेरोट्रोफिक के जो दो टाइप्स है उसमें फंजाई का एक टाइप जो है वो है सैप्रोफाइटिक, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से या फिर डेड लिविंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेगा, और दूसरा है पैरासाइट, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज करेगा, उसको डैमेज करेगा और उससे न्यूट्रिशन लेगा। नाउ सबसे कॉमनली आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे कि प्लांट्स आर केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो यहाँ पर प्लांट्स तो ऑब्वियसली ऑटोट्रोफिक होंगे ही, तो ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। You must have studied about the reaction of photosynthesis, where carbon dioxide and water molecules in the presence of sunlight and chlorophyll become glucose, water and oxygen. So this is the normal reaction of photosynthesis of plants. You must have studied in your 10th class also. और अगर एनिमल्स की बात करें तो इट इज ऑब्वियस कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेटेरोट्रोफिक ही होते हैं, हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो एनिमल्स जनरली दो टाइप से खाना ले सकते हैं, या तो प्लांट से डायरेक्टली, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस, या हर्बीवोरस को खा के कोई और एनिमल जिसे हम बोलते हैं कार्निवोरस। तो एनिमल्स अल्टीमेटली प्लांट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। तो जो एनिमल प्लांट से सीधा न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर, और जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से इनडायरेक्टली न्यूट्रिशन लेंगे थ्रू अ हर्बीवोर्स, यानी कि लायन डियर को खाएगा, डियर ग्रास को खाता है। सिंपली लाइकवाइज दे कुड बी अ पैंथर ईटिंग एनी अदर हर्बीवोरस एनिमल, एंड आल्सो दैट हर्बीवोरस एनिमल्स वुड बी ईटिंग अ ग्रास और एनी अदर प्लांट। सो इन दैट केस यहाँ पर एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एनिमल्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफिक, चाहे वो हर्बीवोरस हो या फिर वो कार्निवोरस हो। इसके अलावा पैरासाइट्स भी होते हैं कुछ एनिमल्स। अब प्लांट्स में नॉर्मली हमने बात किया कि ये ऑटोट्रोफिक होते हैं, लेकिन थोड़े एक्सेप्शंस यहाँ पे भी होते हैं। कुछ प्लांट्स पैरासाइट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा जो होता है वो एक पैरासाइटिक प्लांट है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं, जैसे कि पिचर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट क्या होता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है, तो उनसे भी न्यूट्रिशन ले सकता है। बट दोज आर एक्सेप्शंस, दोज आर नॉट द जनरल कैरेक्टर्स और जनरल फीचर्स ऑफ अ प्लांट। सो द जनरल फीचर्स ऑफ अ प्लांट इज ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय फोटोसिंथेसिस और बाय सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड। Now we come to the last criteria used by R.S. Whittaker for classification, and that was sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सो यहाँ पर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट अकर्स ओनली इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि दो पेरेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पर, यानी कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और इन पांचों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन से होता है नॉर्मली, देन वी कम टू प्रोटिस्टा में भी बाइनरी फिजन हो सकता है, या फिर यहाँ पे बाइनरी फिजन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या फिर और भी मेथड्स हो सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन बहुत कॉमनली होता है, या फ्रैगमेंटेशन भी होता है। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है। एनिमल्स में फ्रैगमेंटेशन और रीजेनरेशन या बडिंग के थ्रू होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन पांचों में तो ऑब्वियसली एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन के, लेकिन व्हाट आर वी डिस्कसिंग हियर, वी आर डिस्कसिंग जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स ओनली इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो हियर टू पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्वड, और यहाँ पर जो टाइप्स पढ़ना है हमें बैक्टीरिया में है कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन हम जब किंगडम मोनेरा पढ़ेंगे तो इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सिंगेमी को हम नॉर्मली बोलते हैं, जो मेल और फीमेल सेल का सेक्स सेल का फ्यूजन होता है उसे हम कहते हैं सिंगेमी। और फर्टिलाइजेशन इन तीनों में होगा, लेकिन इसके पहले फंजाई में एक और स्टेज आता है, उसे कहते हैं डाइकैरियोसिस या डाइकैरियन फेज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मेल और फीमेल सेल जो कंबाइन करते हैं वहां पर दोनों न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज नहीं करते हैं, तो वहां पर एक छोटा सा फेज आता है डाइकैरियो फेज। अदरवाइज यहाँ भी फर्टिलाइजेशन और इन दोनों में तो फर्टिलाइजेशन होता ही है। So these are the 5 types of sexual reproduction that we have to study. And here I am not telling you conjugation in detail. यहाँ पर एक conjugation tube का formation होता है, यहाँ पे fertility factor की बात होती है, वो सारे हम जब तब पढ़ेंगे जब मोनेरा को हम specifically एक डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So these were the common criteria or the main criteria used by R.H. Whittaker for classification of organisms into these 5 categories. So using these 5 categories and using their specific features, R.H. Whittaker classified organisms into these 5 categories. And once again I am telling you, lichens and viruses and a few other organisms like mycorrhiza, these are excluded from here. That is, these are not included in these 5 kingdoms. So we will study those organisms or viruses that is not exactly organisms. So lichens, mycorrhiza or viruses we will study, or viroids and prions. So these are the living organisms or a bit of non-living organisms also. So these organisms we will study separately. These are excluded from this 5 kingdom classification system. So now we have completed our 5 kingdom classification system.